यू आर नॉट चेल्सी यार, यू आर स्पर्स, अपनी औकात में रहो। तो मैनेजर को तो So welcome back, guys, to episode 7 of the Front 3 podcast. I'm sure आपने पिछले हफ्ते का लिवरपूल वर्सेस चेल्सी गेम देखा होगा, काफी हाइप मैच था. तो this time we have a Chelsea expert, you can say, the one and only Drog Baba. तो कैसे हो सर? हेलो, बिल्कुल बिल्कुल बढ़िया है यार. आप लोग कैसे हो? और थैंक यू फॉर हैविंग मी ऑन. मतलब काफी अच्छा लगता है जब मतलब फेलो फुटबॉल फैंस के साथ ऐसे बात करने का मौका मिलता है. मतलब ये एक मैंने सोचा नहीं था कि जब मैंने ये स्टार्ट किया था यूट्यूब, इट वाज ओनली आउट ऑफ पैशन जैसा आप लोग कर रहे हो. तो मेरे को पता नहीं था कि इतने सारे लोग मेरे जैसे हैं फुटबॉल फैनेटिक्स. तो काफी मजा आ रहा है यार, और अच्छा लग रहा है आप लोगों को देख के. तो मतलब आपको भी मैं यही एक ऑल द बेस्ट दूंगा. और एक मतलब मेरा रहेगा कि यार आप ग्राइंड करते रहो, और जस्ट मतलब जो आप कर रहे हो बहुत अच्छा कर रहे हो, तो जस्ट कीप एट इट. थैंक यू सो मच. Thank you. अच्छा, आपसे बिफोर वी स्टार्ट टॉकिंग अबाउट लिवरपूल वर्सेस चेल्सी गेम, मेरे को आपसे क्वेश्चन था. आपने ड्रॉग बाबा नाम सोचा कहाँ से? मतलब आपने कहाँ से सोचा ये नाम रखने का? एक्चुअली माय निकनेम इज बाबा. मतलब मेरे को बचपन से लोग बाबा बाबा बोलते हैं. पता नहीं क्यों, अब उसकी क्या कहानी है. वो बस होता है ना स्कूल में रैंडमली किसी ने ऐसे नाम रख दिया, ओ बाबा इधर आ, ओ बाबा बाबा. तो बचपन से मेरे को सब बाबा बाबा बोलते हैं. ड्रॉगबा इज माय ऑल टाइम फेवरेट प्लेयर. अगर मेरे से कोई पूछेगा कि मेसी रोनाल्डो, तो मैं बोलता हूँ ड्रॉगबा. मतलब मेरे को उस लेवल का प्यार है उस बंदे से. तो ड्रॉगबा बाबा, ड्रॉग बाबा. ऐसे. फिर मेरे को लगा थोड़ा कैची भी है, थोड़ा अलग सा है, तो फिर मैंने कहा चलो ठीक है, चलने देते हैं इसको. Now let's just dive in straight into Liverpool Chelsea. तो मेरे हिसाब से एज अ लिवरपूल फैन पहले 20 मिनट तो खेल लिए थे हमने, जिंदा थे, थोड़ा बहुत खेल लिया था, काफी प्रेस कर रहे थे. सो ओवरऑल आई थिंक फर्स्ट 20 minutes was good, and I think after the Kai Havertz goal, I think at the 21st minute it really bumped the atmosphere at Anfield and itself, क्योंकि Anfield के तो काफी पागल हो जाते हैं हमारे सारे लिवरपूल फैंस. But first 21 minutes, and honestly speaking, I don't even know how he scored that goal because he had no angle. If you watch the replay also, I don't know how he scored it. He was looking at the other side, कहीं और से लग के चला गया. But towards the end, I think overall, we can come over with red card पे तो आएंगे थोड़ी देर में. But right now, when you talk about the overall experience as a fan, I think that for Liverpool, earlier when we had that player like Philippe Coutinho in our team, जो कहीं से भी गोल मार देता था, when we had Wijnaldum, but he helped with the pass and everything. This Liverpool current team, we had the same team for the past, I would say maybe 2 years. We have that same starting lineup, no changes, no new additions, and if we still aren't able to win, forget winning, we aren't even able to score a goal against a 10-man Chelsea. It's absolutely shambolic. And even if you watch the game at home, definitely, I mean, if you watch the game again, if you watch the highlights, we definitely created a lot of chances and we got, I think, more shots than them as well. But of course, Mendy was spectacular throughout the game. But I think we need that one key player who can score from outside the box also, because when Chelsea are playing so tight and when they have that back three or back five, if you want to count the full backs, so we weren't able to penetrate through that, right? And that's what we need to score. And if you look at the way we play, we either rely on counter attacks because Mane and Salah both are extremely fast, and of course dribbling and all is good, but their shooting also excellent. So we need that player to definitely penetrate, but we also need that player who can take long shots. Because Hendo took one shot, but that was slightly off. But yeah, man, that's what I feel. I think you were spot on with the how first half went. मतलब जब चेल्सी ने गोल नहीं किया था उसके पहले इट वाज ऑल लिवरपूल. मतलब जिस तरीके की इंटेंस प्रेसिंग हो रही थी, मार्कोस अलोंसो को बिल्कुल मतलब खत्म ही कर दिया था साला ने. और मेरे को सबसे ज्यादा डर वही लगा था जब मैंने स्टार्टिंग लाइनअप देखी थी कि अलोंसो साला को कैसे मतलब टैकल करेगा. और वो हो रहा था, वो सेकंड हाफ में भी दिख रहा था कि मतलब अलोंसो हैड नो आंसर्स फॉर साला. बट अगर आप देखोगे तो अंडर टूकल चेल्सी का यही थीम रहा है. चेल्सी लेट अदर टीम्स टू डोमिनेट फॉर अ व्हाइल. मतलब आर्सेनल वाले गेम में भी यही हुआ था. आर्सेनल केम आउट ऑल गन्स ब्लेजिंग पहले 8-9 मिनट में. पर एक बार जब समझ आ जाता है कि गेम का पेस क्या है, क्योंकि ऑर्गेनाइजेशन इतना अच्छा है थॉमस टूकल का, एंड स्पेशली दैट डबल पिवट, दो जो नंबर 6 का जो स्क्रीन देते हैं वो बैक थ्री को, वो एक बहुत ज्यादा क्रूशियल है. और जब आपके पास एनगोलो कांटे होते हैं तो एक आपको एडेड एज मिल जाता है व्हेन यू आर ट्राइंग टू डिफेंड. तो
ये एक बहुत अच्छी चीज है, एंड इट इज नॉट ओनली डाउन टू द इंडिविजुअल क्वालिटी, आई थिंक इट इज मोर डाउन टू थॉमस टुकल्स ऑर्गेनाइजेशन। और गेम की अगर जहां तक बात करें तो ये मेरे को एक्सपेक्टेड था कि शुरू में मतलब जिस तरीके का प्रेसिंग करती है लिवरपूल और वो हाई लाइन खेलती है लिवरपूल, तो प्रॉब्लम रहेगी चेल्सी को। लेकिन once 2 or 3 passes start to string together, उसके बाद लिवरपूल को प्रॉब्लम होगी। वन सरप्राइज वाज कि वर्नर स्टार्ट नहीं किया, बिकॉज द हाई लाइन दैट लिवरपूल प्ले, आई थॉट वर्नर विल स्टार्ट, क्योंकि हमने देखा था लास्ट सीजन भी जब एनफील्ड में मैच हुआ था तो वर्नर क्रिएटेड अ लॉट ऑफ प्रॉब्लम्स दैट डे फॉर लिवरपूल्स बैकलाइन। एक गोल शायद रूल आउट भी हुआ था वर्नर का ऑफ साइड से, बहुत मार्जिनल डिसीजन था वो। तो मुझे लगा था कि शायद वर्नर लुकाकू का वो कॉम्बिनेशन हमको देखने को मिलेगा, बट हैवर्ट्स प्लेड रियली वेल दैट डे। और फाइनल थर्ड में अगर डिसीजन मेकिंग थोड़ी सी सही होती तो शायद फर्स्ट हाफ में ही 1-2 गोल और गोल स्कोर कर सकती थी चेल्सी, को काउंटर पे बहुत बार पकड़ा था लिवरपूल को। तो आई वाज क्वाइट हैप्पी। और फिर जो हुआ फर्स्ट हाफ के एंड में, मतलब रीस जेम्स के साथ जो हुआ काफी कंट्रोवर्शियल है। मतलब मैं ये कहूंगा कि अगर सिर्फ उस इंसिडेंट की हम बात करें तो इफ आई एम अ लिवरपूल फैन तो मैं कहूंगा हाँ मेरे लिए क्लियर रेड कार्ड है, क्योंकि if you're scoring, if you're stopping a clear goal scoring opportunity तो उसमें इंटेंशन मैटर नहीं करता। मतलब हाथ पे लग गई तो लग गई, मतलब हैंडबॉल है तो हैंडबॉल है। बट आई वाज हार्ड डन बाय बिकॉज आई एम अ चेल्सी फैन ऑब्वियसली। तो मेरे को ये था कि पेनल्टी डेफिनेटली यस, बट रेड कार्ड नहीं बनता था। बट अगर मैं उसको फिर हाइंडसाइड में देखूं तो रूल ही जब ये कहता है कि अगर आप गोल लाइन पे लास्ट बंदे हो और हाथ लग गया आपका और फिर रेड कार्ड है, तो फिर देयर आर नो टू वेज अबाउट इट। तो रूल बुक के हिसाब से आई थिंक रेड कार्ड वाज द राइट डिसीजन जहां तक रूल्स हैं। बट इस चीज को रिविजिट करने की भी जरूरत है, क्योंकि अगर 11-on-11 गेम होता, 1-1 हम जाते हाफ टाइम पे, तो शायद गेम और एंटरटेनिंग हो सकता था सेकंड हाफ में। 100%। और जैसा आपने बोला 100%। हाँ, और जैसा आपने बोला कि लिवरपूल के प्रॉब्लम है, मतलब एक उनको बंदा चाहिए जो बाहर से शूट कर सके। तो आई डोंट थिंक कि इतनी ज्यादा प्रेसिंग नीड है वो इस समय, क्योंकि चेल्सी न्यू व्हाट दे नीड टू डू। मतलब एक अगर वो कोवाचिच का चांस जो काउंटर पे बना था सेकंड हाफ में, उसके अलावा चेल्सी वर नॉट ट्राइंग टू स्कोर इन एनी कैपेसिटी। तो अब यही था कि भाई एनफील्ड पे आए हैं, कांटे नहीं है, कॉप एंड है, डिफेंड कर लो। 1 पॉइंट इज अ रियली गुड पॉइंट अवे एट एनफील्ड, क्योंकि एनफील्ड इज नॉट अ प्लेजेंट डेस्टिनेशन फॉर चेल्सी फैंस। मतलब ठीक है लास्ट सीजन जीत गया, उससे पहले भी वन वे बैक इन 2014 जब वो डेम्बाबा ने गोल किया था, वो अनफॉर्चुनेट जेरार्ड वाला जो स्लिप हो गया था, उसके बीच में कभी चेल्सी एक बार शायद और जीती थी जब डियो कोस्टा ने शायद गोल किया था। बट यू नो व्हाट आई मीन, मतलब एनफील्ड इतना मतलब नहीं रहा है प्लेजेंट चेल्सी के लिए। तो 1 पॉइंट, और स्टार्टिंग में सीजन में जब हम इतने सारे टॉप 6 राइवल्स के साथ खेल रहे हैं, दिस वीक वी आर प्लेइंग एस्टन विला, देन वी गो टू स्पर्स, देन सिटी कम टू स्टैमफोर्ड ब्रिज। तो उस कॉन्टेक्स्ट में अगर देखें तो 1 पॉइंट is massive for Chelsea, और उसी पॉइंट की तलाश में पारदबस कर दिया। It was reminiscent of that second leg against Barcelona in 2012 मतलब अटैक पे अटैक करना है बट हम गोल नहीं खाएंगे। तो I don't think कि Liverpool lacked that penetrative edge, but I think it was more down to Tuchel, and the game plan was very clear in Chelsea's mind कि उनको करना क्या है। तो उसमें टूकल तो मास्टर है ही, मतलब व्हेन ही सेट्स आउट हिज टीम तो क्या करना है। और चलोवा को इंट्रोड्यूस कर दिया लास्ट के 5 मिनट में कि भाई तू मिडफील्ड में खेल, तो बैक 5 का बैक 6 भी हो गया वो एंड में। तो मतलब काफी अच्छी चीजें हैं। तो ठीक है अभी बहुत अर्ली है ये सब चीजें जज करना, बट आई थिंक हाँ लिवरपूल का एक चीज जो मुझे कंसर्न जरूर करता है वो उनका स्क्वाड डेप्थ है। एंड आई थिंक समर में बिल्कुल भी उन्होंने वो बिजनेस नहीं किया, वैनल्डम को ही रिप्लेस नहीं किया उन्होंने, क्योंकि थियागो को अभी भी हमने देखा है कि वो इंटीग्रेट नहीं हो पा रहे हैं टीम में। हार्वी एलियट आए हैं, ही इज अ डिसेंट प्लेयर, बट वो तो गैम्बल है ना यार, कि मतलब अकेडमी से बंदा आया, चला नहीं चला, खेलता कभी नहीं खेलता, हार्वी एलियट के साथ भी अगर if you get such a young player and if you get him as a replacement for Wijnaldum, the amount of pressure that such a young player gets, they get under it now. तो इतना I mean of course बढ़िया player है, लेकिन इतना pressure Wijnaldum की replacement, so many people are going, and then you get a 18-year-old and you put so much pressure on him to say भाई तू यहाँ right mid पे खेल ले, तू यहाँ mid पे खेल ले, so it's too much pressure on him, and now he's got injured also. हाँ थोड़ा concerning है भाई। बस उनको फोकस करना है कि इस पे और बिल्ड ना हो लास्ट सीजन की तरह, जैसे उनने काफी अपने प्लेयर्स लूज किए थे, वैन डाइक और वगैरह। तो वही बट चेल्सी के बारे में एक चीज मुझे, जैसे आपने बोला कि चेल्सी वर क्लियर इन देयर माइंड दैट दे डिडंट वांट टू स्कोर, वो 1 पॉइंट के लिए दे वर फाइटिंग एंड दे डिड वेरी वेल इन द डिफेंसिव, लाइक एज वी हैव सीन प्रीवियसली आल्सो अगेंस्ट मैनचेस्टर सिटी इन द फाइनल। Once Tuchel gets into that defensive strategy, like almost no one can stop him. Maybe like with their current squad, PSG का front three शायद मार लेगा गोल क्योंकि वो PSG है, but
Yeah, mostly Prem. I don't think anyone will be able to get more goals. But one thing I was a little disappointed by was Lukaku का performance in that game. Because जैसे आपने बोला कि final third में when that decision making in near the box अगर वो थोड़ी better होती और Lukaku थोड़ा vision के साथ खेलता, so we could have probably bagged a couple more goals and वो 1.3 points हो जाता, which makes a difference. But ठीक है, I guess he's just come back. Inter में we see him running very fast against defenders, but here again the scenario is different, and let's hope he gets better throughout the season. हाँ मतलब अभी क्या है, लुकाकू का रोल थोड़ा डिफरेंट हो गया जो इंटर में था. इंटर में मतलब थोड़ा वो रन इन गेट इन बिहाइंड वाले रन्स करता था, थोड़ा सा मतलब वो बैक लाइन को थोड़ा सा स्प्लिट करने की कोशिश करता था. अभी उसका रोल थोड़ा सा डिफरेंट इसलिए क्योंकि वो थोड़ा डीप आता है, वो बॉल को अपने पास आने देता है, एंड देन प्लेयर्स जो फ्रंट थ्री है, मतलब जो फ्रंट थ्री में बाकी दो है, माउंट और हैवर्ट्स या वर्नर होगा, तो दे ट्राई टू प्ले अराउंड हिम. तो वो अभी उसका रोल हो गया. मतलब आप देखोगे कि आई वोंट बी सरप्राइज्ड इफ ही एंड्स अप एज द हाईएस्ट असिस्ट, मतलब हाईएस्ट असिस्ट इन दिस सीजन. मतलब गोल तो ठीक है, गोल स्कोरिंग के लिए तो उसको लाया गया है, असिस्ट भी बहुत आएंगे अभी लुकाकू पे. और आपने जैसा कहा कि जैसे जैसे लुकाकू अपने आप को इम्पोज कर रहा था उस गेम में, वो रेड कार्ड वाला इंसिडेंट हो गया, तो अपन कुछ मतलब उसके बारे में तो क्या ही बोले. बट हाँ ठीक है, नॉट ओनली लुकाकू, हैवर्ट्स का भी थोड़ा डिसीजन मेकिंग डिसअपॉइंटिंग था. एक पॉइंट पे वन टच पास करना था लुकाकू को, लुकाकू वाज थ्रू ऑन गोल. एक जगह एंगोलो कॉन्टे बॉल लेके भाग रहे थे, लुकाकू को क्लियर थ्रू बॉल था, वो भी उन्होंने फिर वाइड शायद माउंट को खिला दिया. एक बॉल था जो लुकाकू हैवर्ट्स को खिला सकते थे, बट उन्होंने माउंट को खिला दिया, जो एक शॉट भी मारा था और वो मतलब काफी मतलब हाँ ब्लॉक हो गया था गोल लाइन पे. तो ठीक है, मतलब ये छोटी मोटी इफ बट्स एंड मेबीज तो चलते रहते हैं स्पोर्ट में, बट ठीक है, मतलब नथिंग टू बी वेरी कंसर्न्ड अबाउट. मतलब 2 मैच तो खेले यार, एक में मैन ऑफ द मैच हो गया, वो टाइम देते थोड़ा सा. बट जैसे अभी अनवय बात कर रहा था लिवरपूल की लाइक स्क्वाड डेप्थ के बारे में, एंड लास्ट सीजन तो लिवरपूल्स मेन प्रॉब्लम वाज द इंजरीज. वीवीडी आउट है, बट this time he came back. How do you think Lukaku के सामने, like what do you think, how do you think he played on that? So in front of Lukaku, पहले से ही only there was so much hype that Van Dijk और Lukaku एक दूसरे के against these two big guys are going to play against each other. So I think overall VVD played a great game, but उसने एक shot, अगर if you watch that shot he took also against Mendy, but Mendy again was excellent. As a defender, I think Van Dijk played well, but there were these certain times, जैसे if you see that Mount, जब Mount ने एक offside पे गोल मारा था, तो उसमें Van Dijk थोड़ा सा clueless था. But overall, I think Van Dijk had I wouldn't say a good game, he had a decent game. He kept Lukaku silent throughout the game only. I mean, through most of the game. So I think we can, the match is pretty much done. We can move on to what we expect from our teams. So let's go in order. Anway, what do you think? Do you expect Liverpool to win the Prem or like get any trophies this season, or what? I think obviously it's too early to judge, but at the same time, if you look at a team like Liverpool, obviously like Drog Bhai was also saying that we've faced the issue with our squad depth, and so what I was hoping was that Liverpool would get someone in this summer window, but we ended up getting another. I mean, obviously after last season situation, we got a centre back. It's a wise decision, but at the same time, if we're letting go of players like Wijnaldum, we should capitalize on that and get someone, maybe a better false nine or someone like a better midfield or someone. But I can't see them winning the title because that's a little too much, even for a club like Liverpool in such great form. Because as of now, I mean, I hate to say it, but I think Chelsea is the most favorite to win both the Champions League. So definitely, I think Chelsea and PSG. But Prem as well, I think it should main fight should be between Chelsea and City. I think because United have a good team. They've got Ronaldo in, but I couldn't see the need in getting Ronaldo as a player. I mean, obviously the fact that Ronaldo aa gaya, that's always there, and what he brings to United, that's there. But if you look at it from Liverpool's perspective, obviously there's a lot to worry about, considering the injuries and everything that we can get. So honestly speaking, I can't see us winning anything. But I don't know, man. You tell me, man. You think Chelsea is winning anything this season? See, with our current squad, I would expect Chelsea to bag at least one trophy, if not the Prem, because obviously City is a big titan at this point in the Premier League, which is like it's very hard to get past them. And we've seen like teams try, like Liverpool. I think in 2018, they lost by 1 point or something. What was it, Anway?
Yeah. One millimeter when remember John Stones saved it. Yeah, he's goal line 1 clearance. millimeter. And again, कुछ भी हो सकता है at this point because there are so many teams in Europe right now who are so stacked with players, so we can't really judge. What about you, Mr. अब देखो अभी क्या है कि जैसा अनवे ने बोला कि चेल्सी का जो स्क्वाड है सबसे ज्यादा मतलब अभी लग रहा है कि हाँ मतलब सही है, और मैं भी यही मानता हूँ कि आउट ऑफ द 4 टीम्स जो अभी लग रहा है कि टाइटल के लिए चैलेंज करेंगी, बोथ मैनचेस्टर क्लब्स, लिवरपूल एंड चेल्सी। तो अगर आप देखोगे तो सिटी वांटेड अ स्ट्राइकर बट दे वर नॉट एबल टू गेट हैरी केन। लिवरपूल ने तो कुछ बिजनेस किया ही नहीं है, मतलब एक कुनाटे आ गया, उसके अलावा आई डोंट थिंक दे हैव साइंड एनी मतलब प्रूवन प्लेयर या एनी कोई बहुत बड़ा कोई उन्होंने नाम साइन किया। यूनाइटेड ने बहुत अच्छा बिजनेस किया है, सैंचो, वरान, रोनाल्डो, बट एक ट्रांसफर विंडो अच्छी होने के लिए आउटगोइंग्स भी आपको करनी पड़ती है। मतलब जैसे वाई इज जेसी लिंगार्ड स्टिल इन द क्लब, मेरे को समझ नहीं आ रहा। मतलब ठीक है उसने प्रूव किया, वो वेस्ट हैम क्यों नहीं गया मेरे को ये समझ नहीं आ रहा है। तो ठीक है डैनियल जेम्स को उन्होंने जाने दिया, बट डेडवुड भी बहुत ज्यादा है जो यूनाइटेड नीड टू गेट रिड ऑफ। जैसे फिल जोन्स एक लेजेंड है मतलब पता नहीं कब से वो क्लब में और पता नहीं क्या उनका चल रहा है। तो इस तरीके की उनको थोड़ा सा अगर वो बिजनेस और अच्छा करते हैं, और एक डिफेंसिव मिडफील्डर का डेफिनेटली उनका एक मतलब वो क्रंच है, क्योंकि वो फ्रेड का हमने देखा है कि 3 मैच में किस तरीके से मतलब लीड्स वाला गेम हटा दे तो साउथहैम्पटन और वुल्स के अगेंस्ट जो गेम हुआ था, स्पेशली वुल्स वाला गेम, तो वो एक जरूर कमी है। तो इसलिए मुझे लगता है कि चेल्सी का जो स्क्वाड है काफी बैलेंस्ड है, बिकॉज ऑल वी नीडेड वाज अ गोल स्कोरर अप फ्रंट, वी गॉट लुकाकू। तो ये एक्सपेक्टेशंस तो रहेंगी, और मतलब मैं तो देखो बहुत ओवर ऑप्टिमिस्टिक चेल्सी फैन हूँ। मतलब मैं तो जाता हूँ किसी भी सीजन में, लैम्पार्ड वाले फर्स्ट सीजन में भी मैं गया था, मैं कहा यार इस सीजन में तो 1-2 ट्रॉफीज तो जीत ही जाएंगे आप, क्योंकि वो मतलब रहे अगर ये आप में अगर नहीं होगी ना ये फीलिंग, तो आपको फुटबॉल देखने में मजा ही नहीं आएगा। मतलब फिर वो इमोशन ही निकल जाएगा। हाँ तो बस वही है। तो आई थिंक रियलिस्टिकली स्पीकिंग प्रीमियर लीग मतलब चेल्सी बहुत अच्छी पोजीशन में इस समय, प्रोवाइडेड कि मेजर प्लेयर्स को इंजरी ना हो। और चैंपियंस लीग का तो यार कभी मतलब बहुत रैंडम है, तो कुछ भी कहना मुश्किल है। मतलब और ऑल डिपेंड्स ऑन द ड्रॉ, मतलब क्या होता है। तो चैंपियंस लीग का भी मैं नहीं बोलूंगा। हाँ तो आई मीन ऑब्वियसली जैसे आप कह रहे हैं कि चैंपियंस लीग का ड्रॉ तो अभी हुआ है, तो इट्स टू अर्ली टू मेक डिसीजंस। लेकिन चेल्सी का दे वन प्लेयर दैट रियली स्टूड आउट फॉर मी वाज द साइनिंग ऑफ साउल। लास्ट मिनट साइनिंग थी, किसी ने ज्यादा एक्सपेक्ट तो किया नहीं था। तो आप मेरे को बताओ एज अ चेल्सी फैन, लाइक डू यू थिंक लाइक ऑब्वियसly इन I mean, I wouldn't say, I mean, you can say prime Jorginho and maybe Kante at his best. So, do you think Saul fits into this current Chelsea 11 if Kante and Jorginho both are there? Because obviously, it doesn't make sense to play 3 CDMs. Where do you think Saul will fit best in this Chelsea team? I think the toughest competition he'll give is to Kovacic. Kovacic की प्लेस खतरे में हो जाएगी। मतलब Kovacic जितना खेलता है, obviously कांटे जॉर्जिनियो को आप नहीं ला सकते। ये जो 2 नंबर 6 हैं, अगर ये फिट रहेंगे साल भर, इनको कुछ भी नहीं होता, तो ये दोनों खेलेंगे ही, आप कुछ नहीं कर सकते। मतलब क्योंकि वन इज UEFA प्लेयर ऑफ द ईयर एंड द अदर वन इज बेस्ट मिडफील्डर इन यूरोप, अभी जो अवार्ड्स दिए गए थे वो चैंपियंस लीग ड्रॉ में। तो मतलब ये 2 प्लेयर्स हैं आपके पास, तो आप इन दोनों को तो हटा नहीं सकते। तो वही बात नहीं हो जाए कि मिडफील्ड इज ऑलरेडी सो स्टैक्ड, डॉनी वैन डर बीक वाला सिचुएशन कि फुल सीजन साउल इज प्लेइंग ऑन द बेंच। I just hope that's not the case. But I hope that won't be the case, because यही इस डील के लिए इतना टाइम लग गया था, क्योंकि साउल वांटेड गेम टाइम, और टूकल ऐसा न्यूज़ आ रही थी कि टूकल वाज नॉट एबल टू प्रॉमिस हिम प्रॉपर गेम टाइम। फिर एटलेटिको को ऑब्लिगेशन डालना था, चेल्सी को ऑप्शन चाहिए था टू बाय, तो वो सारी चीजें अब सॉर्ट हो गई हैं। एंड ऑब्वियसली टूकल इज अ मैन विद सम प्लान्स इन हिज माइंड, तो रहेंगी ये चीजें। और जैसा मैंने आपको कहा कि वो टीम्स जिनके डिफेंसेस तोड़ने में प्रॉब्लम होती है, लो ब्लॉक वाली टीम्स में साउल विल बी वेरी इफेक्टिव। साउल का रोल बहुत क्रूशियल रहेगा इस सीजन, एंड वी विल सी अ लॉट ऑफ साउल दिस सीजन, आई एम श्योर अबाउट इट. And he's very versatile as well. Na? He can you can give him almost every position. Like obviously he can't play a very good striker because he's not that kind of player. But in midfield or even in defensive, he can play again. And he has played as a wide center back too in Atletico. Yeah, in Atletico, exactly. Under Simeone, because Simeone is such a defensive manager as well. So moving to United, पहली बात तो ट्रांसफर्स बहुत अच्छे किए हैं, एक्सपेक्टेशंस आर हाई, ग्लेजर्स ने कुछ तो किया है इस बार, बट आई मीन डोंट एक्सेप्ट दिस एज लाइक एक्सेप्टिंग एन अपॉलजी और समथिंग, बट वो तो बहुत टाइम लगेगा।
बट एक्सपेक्टेशंस आर हाई. रोनाल्डो अभी आया है, सैंचो 1 साल के बाद आया है. It's again जैसे अनवर ने बोला, it's too early to say यार. You need to see them play. Chemistry चाहिए इनको. Varane तो पहला मैच against Wolves he played well. He got an assist. He Lindelof के लिए तो he's a great replacement. But with Sancho अभी तो I'm not seeing that chemistry yet. Hopefully future में होता है. Ronaldo के साथ वही concern है. But just the fact that we've got them in right now, it's going to be huge. Trust me. But again, if I look at it in comparison with a Chelsea or a Man City, I won't say we'll 100% beat them. It's still right now 50-50 for me, because it all depends on the one man Cristiano. He has the ability to completely change the game. So yeah, we'll have to wait and watch how he adapts to the Premier League. कैसे करता है. That's pretty much it. Yeah, I think more than the Premier League, Champions League में Cristiano काफी reliable है, क्योंकि even though Juventus में we haven't seen his best, obviously Madrid, Ronaldo was just on another level, but even in there he's had moments like I think hat-trick against Atleti, which made his comeback and made him pass. So last season he outscored Lukaku by 5 goals, मतलब 29 goals थे उसके और 24 goals Lukaku के थे. Lukaku का जो रिटर्न था सारे चेल्सी फैंस और प्रीमियर लीग के लिए न्यूट्रल फैंस के लिए बहुत एक्साइटिंग था कि एलीट स्ट्राइकर आ रहा है, क्योंकि हम 3 स्ट्राइकर्स की बात करते हैं एलीट ब्रैकेट में, तो लुकाकू, अर्लिंग हालैंड और हैरी केन की बात होती है. इन 3 की बात होती है. तो रोनाल्डो ने उस ब्रैकेट के स्ट्राइकर से ज्यादा गोल मारे लास्ट सीजन, तो मतलब उस लेवल पे अभी भी है वो. And now even though he scored more goals, तब बोल रहे हैं रोनाल्डो अब ओल्ड है, लुकाकू is going to be the नहीं, he is a specimen और he has a body of 28 year old अभी भी. तो वो सब चीजें तो फालतू की हैं. इट्स जस्ट अबाउट कि ओले का जो सिस्टम है उसमें मतलब इज ही एबल टू एक्सप्रेस हिमसेल्फ, और मतलब उसके अराउंड जो प्लेयर्स हैं उनका गेम कैसा हो जाता है उसके आने से. उसकी बात तो सिर्फ उसकी होगी, इसकी तो बात ही नहीं है कि उसकी एबिलिटी क्या है, कैन ही रन और नॉट, क्या वो इंजरी फ्री रहेगा नहीं रहेगा. मतलब ठीक है, बहुत इंटेंस है, सबसे ज्यादा इंटेंस है प्रीमियर लीग, सबसे ज्यादा फिजिकल है, लेकिन दैट फैक्टर्स वोंट बॉदर रोनाल्डो. मतलब I won't be surprised if he ends with the golden boot this season too. Can be, but plus point is कि he knows the manager. उसके साथ ओले के साथ खेला है आज. I'm sure you've seen that photo. ये सब चीजें मैटर नहीं करती, ट्रस्ट मी. एस्पिलिक्वेटा played a lot with Lampard too. और मतलब और भी सही काफी चीजें थी. It is all about मतलब वो जो सिस्टम है, क्योंकि देखो क्या है ना, रोनाल्डो इज अ प्लेयर हु वोंट सेटल फॉर मीडियोक्रिटी. तो एक एडिट प्रेशर आ जाता है ओले पे भी और बाकी टीम पे भी कि हमको यार अपना गेम अब लिफ्ट करना पड़ेगा. आई डोंट थिंक फॉर एनी मैनचेस्टर यूनाइटेड फैन इट इज अ गुड फीलिंग टू रियलाइज कि यार 2013 के बाद तो हमने टाइटल ही नहीं जीता. टाइटल जीता नहीं छोड़ो, टाइटल रेस में भी नहीं है प्रॉपर्ली 2013 के बाद से. मतलब तो उस लेवल पे रोनाल्डो लेके जाते हैं कि नहीं, वो देखना होगा. जीतेंगे नहीं जीतेंगे वो अलग बात है, बट अब ये नहीं हो सकता है कि यार साउथहैम्पटन से भी मर के जीत रहे हैं या वुल्व्स को भी डोमिनेट नहीं कर पा रहे. मतलब ये टीम्स को तो पेल देना है, और जो अच्छी बड़ी टीम्स हैं उनके अगेंस्ट रिजल्ट्स चाहिए. तो देखते हैं. आई थिंक कि मतलब यूनाइटेड के लिए तो यार पॉजिटिव ही है, मतलब रोनाल्डो हैज कम होम. but while you were talking about like mediocrity, so United का जो CDM role है, that's one place where we really need to work on. So I'm sure आपने भी देखा होगा, Fred doesn't cut the role of that. So कौन do you think Donny van de Beek can come in, या लोग बोल रहे हैं Lindelof भी खेल सकता है वहाँ? I think van de Beek को जितना मैंने खेलते देखा है, वो और वो लाया भी एज अ ब्रूनो का बैकअप ही था. मतलब वो जो आयक्स में भी खेलता था वो तो he had a role, मतलब थोड़ा सा लेट बॉक्स में आएगा, अपने आप को अवेलेबल रखेगा पासेस के लिए. जो स्टैमफोर्ड ब्रिज में मैच भी हुई थी आयक्स वर्सेस चेल्सी 4-4, उसमें वैन डे बीक ने परेशान करके रख दिया था पूरा मिडफील्डर्स, जॉर्जिनियो को स्पेशली, और जो बैकलाइन थी. मतलब इतना न्यूसेंस क्रिएट करता है वो, फ्री रोम करेगा आके बीच में, अपने आप को अवेलेबल रखेगा. बहुत अच्छा क्लिनिकल गोल स्कोरर भी है अगर बॉल उसके पास आ जाए. अनफॉर्चुनेट है कि ब्रूनो इस लेवल पे खेल गया कि उसको चांस ही नहीं मिल पाया बिल्कुल भी आने का. बट आई डोंट थिंक कि डिफेंसिवली वो इतना ज्यादा मतलब कर पाएगा. मतलब हो सकता है कर दे, मतलब आई एम वेरी स्केप्टिकल, क्योंकि उसको उस रोल में कभी देखा नहीं. तो जब हम देखा नहीं है तो वैन डे बीक आई डोंट थिंक कि होगा. मैटिच ऑब्वियसली इज रॉन्ग साइड ऑफ 30s नाउ, बट अभी रिलायबल नहीं है. तो आई थिंक कि यू शुड हैव गॉन ऑल आउट फॉर कामाविंगा इन दिस विंडो, मेरे को ऐसा लगता है.
मतलब जो रियल मैड्रिड ने निकाल लिया उनका ट्रांसफर, और 35 मिलियन में 35 मिलियन इज नॉट अ ह्यूज अमाउंट अगर आप देखो तो। हाँ तो अगर हाँ तो रूबिन नेवेज हो गया, कामाविंगा हो गया, कैल्विन फिलिप्स, डेक्लन राइस, मतलब इस प्रोफाइल का अगर एक प्लेयर आ जाता है यूनाइटेड में इस विंडो में, तो आई वुड हैव सेड डेफिनेटली कि नहीं यार सिटी चेल्सी नहीं, यूनाइटेड विल आल्सो बी इन द मिक्स। बट क्योंकि क्या है ना, ये डिफेंसिव लगता ऑन पेपर एक ही प्लेयर है, लेकिन वो जो पोजीशन है ना वो बहुत ज्यादा क्रूशियल हो जाती है, जो हमने चैंपियंस लीग फाइनल में देखा ही। मतलब आपको एक मोमेंट चाहिए, और अगर आप ओवररन होते रहोगे ना बार बार, तो आपके अटैकर्स तो नलीफाई हो जाते हैं बिल्कुल, फिर उनको पीछे आना पड़ेगा। और रोनाल्डो वो काम करेगा नहीं, रोनाल्डो वो मेहनत नहीं करेगा, मतलब ही डज नॉट लाइक टू डू दैट डर्टी वर्क। वो एक ही पर्पस के लिए है, दैट्स टू स्कोर गोल्स एंड दैट्स टू डोमिनेट द प्रीमियर लीग। तो उसके लिए आपको पीछे पहले सॉलिड करना पड़ेगा। पर देखते हैं अभी क्या होता है। रोनाल्डो के आने से सीडीएम प्रॉब्लम कैसे सॉल्व होती है, तो मतलब देखना पड़ेगा कि ओले के पास क्या मास्टर प्लान है इसके लिए। जनवरी में आई थिंक डेफिनेटली यूनाइटेड शुड गो फॉर अ डिफेंसिव मिडफील्ड। So talking about Ronaldo, तो मतलब I mean आपने भी, I'm pretty sure you've heard about this, that many people are pretty skeptical about this Ronaldo signing. Of course United fans are happy, but at the same time many people are saying that, you know, obviously if you look at United's attack, they have now Sancho, Martial to a certain extent, Rashford, a fit Rashford, Mason Greenwood getting back in form, Paul Pogba, Bruno, so they have all these players. And uski upar they're adding Cristiano Ronaldo. Obviously, it's a great addition to the squad depth and to what he brings as a player. I mean, I don't want to get into the debate between the best player or the second best player, but if you call him even the second best player, if he comes into your team, that'll boost the morale of each youngster, no? Of every player. If I am in a team in Manchester United and I see Cristiano Ronaldo coming in, obviously I'll want to better my game and I'll want to reach up to his level. So I think he'll just, in general, lift the performance of United. And जैसे हमने देखा short sales तो बिल्कुल through the roof. So there are a lot of things that he'll get to United. So I think tactically it was an excellent signing for them. फाइनेंशियली भी मतलब आप देखो तो शर्ट सेल्स जो है आर थ्रू द रूफ, आउट ऑफ स्टॉक हो गई है जर्सी। तो मतलब मैं तो कह रहा हूँ साइनिंग तो बेहतरीन है, उसमें कोई डाउट नहीं है। और मतलब एक वो भी होता है ना कि एक फैन सर्विस भी हो गई कि मतलब जो इतना टाइम से शोर मच रहा था कि यार जो ग्लेजर्स हैं या मतलब एड वुडवर्ड तो खैर अभी नहीं है, बाकी जो माइकल कैरिक हैं और जो नए डायरेक्टर काफी अच्छा काम कर रहे हैं यूनाइटेड। सैंचो सागा बहुत लंबा खिंच गया अननेसेसरीली, बट फाइनली ही केम टू यूनाइटेड। तो ठीक है, वरान वाज अ स्टील, 42 मिलियन में वरान को साइन करना मतलब एब्सोल्युटली ग्रेट बिजनेस। तो क्वालिटी है, नो डाउट अबाउट इट। बट अगर फिर हम आए फुल बैक्स पे आ जाते हैं, जैसे तो वैन बिसाका को कुछ हो जाए, तो राइट बैक एक प्रॉपर एक मतलब रिकॉग्नाइज्ड राइट बैक का एक प्रॉब्लम है। एलेक्स टेज अगेन मतलब कैन ही प्ले ऑन द राइट, आई एम नॉट श्योर। लूक शॉ लास्ट सीजन हमने देखा इतने टाइम बाद कि हाँ फाइनली ही इज द लूक शॉ दैट मतलब वो पोटेंशियल दिखता था साउथहैम्पटन में कि हाँ यार ये वो प्लेयर बनेगा। बट इट टुक वेरी लॉन्ग फॉर लूक शॉ टू कम इनटू हिज ओन। तो ठीक है, आई होप फॉर यूनाइटेड फैंस और आपके लिए भी कि मतलब ये सब चीजें ज्यादा परेशान नहीं करें, बट स्टिल देयर आर सम होल्स टू बी फिल्ड। Yeah, definitely. So, I mean, Krishna, I would like to ask this to you because as a United fan, you know, bringing in Cristiano Ronaldo, arguably the strongest header, I mean, player with the head. So, I mean, if you have, I mean, obviously, if you get Cristiano Ronaldo, वो तो balls मांगेगा ना. But what about Aaron Wan-Bissaka? Because defensively, I mean, he's a good defender. Like if you look at his defensive stats, but attacking wise, if you look at the balls that he plays in and the way he just creates chances and all, that's like you can't see that. You know, if you look at, if maybe I'm just giving a hypothetical situation that if you get Trent in that team and you see those balls that he plays and the chances that he creates, that's something that Ronaldo would love to have. No, so any player that you feel as a United fan would be excellent in that particular position? ऐसे तो on the top of my head तो I can't think, but I completely agree with your point कि like reliable है Wan-Bissaka, but he's not that caliber of the player you'd as a United fan you'd expect him to be, especially when Ronaldo you want those crosses flying in, you want those balls going in. But वही I mean again as Drogba Baba said, उसका अगर वो भी injure हो गया, you don't really have a good right back replacement. So again that could be a place United might have wanted to invest in the transfer window, maybe in the upcoming one as well. ट्रिपियर से लिंक आ रहे थे यूनाइटेड के। हाँ that was बहुत पहले। बट अगेन ट्रिपियर की बात करूँ तो डिफेंसिवली इज फैंटास्टिक, बट ऑन द बॉल जो चाहिए आपको एक
बीच में, जैसे अगर आपके पास रोनाल्डो है, जैसे अनवर राइटली मेंशन कि एक क्रॉसर चाहिए आपको, जैसे एक रीस जेम्स, एक ट्रेंट टाइप का अगर आपके पास क्रॉसर है तो मजा ही आ जाएगा। मतलब और सैंचो का भी हमने देखा था डॉर्टमंड में, मतलब ही इज नॉट मच ऑफ अ क्रॉसर, पर वो एक 1-2 वाला लिंक अप प्ले वाला इंटेलिजेंट प्लेयर, बीच में आएगा, फिनिशर बहुत अच्छा है, रन्स बॉम्बिंग रन्स निकालेगा, बेहतरीन ड्रिबलर है। क्रॉसिंग का आई एम नॉट श्योर, मतलब सैंचो ठीक है, मतलब ही इज अ वेरी, मतलब मैं ये नहीं कहूंगा कंप्लीट वाइड फॉरवर्ड, बट मतलब ही ब्रिंग्स अ लॉट टू द टेबल। एक प्रॉपर राइट विंगर की जो जरूरत थी वो क्वेस्ट खत्म हो गई है यूनाइटेड की, वो प्रॉब्लम्स तो सॉल्व करता है सैंचो, बट अगेन वो क्रॉसर एक ही है, मतलब माइंड में 2 ही नाम आते हैं, पॉगबा और ब्रूनो। मतलब अगर क्रॉसिंग की बात करें, पॉगबा भी मतलब उस पोजीशन से क्रॉस तो कहीं, मतलब कैसे मतलब वो वाली प्रॉब्लम है, तो लेफ्ट पे खिला है। हाँ अनलेस उसे लेफ्ट पे खिला है, नहीं तो फिर ब्रूनो फिर वही डीप से आके और फिर वो पॉकेट में आके राइट वाली क्रॉस डाले अंदर, तो वो मतलब ठीक है वो प्लेयर। उनको आइडियली एक बेकम जैसा राइट विंगर चाहिए था बैक इन द डे, जो क्रॉस भी कर सके और मतलब बॉक्स से बाहर से उड़ा सके। हमें जैसे हम बोलते हैं ना, ड्रॉगबा के बाद एक कोस्टा को हटा दो तो मतलब कोई भी ऐसा स्ट्राइकर नहीं आया जो तो विजुअल थिंकिंग वाली बात है, बट ठीक है, आई गेट योर पॉइंट। तो हाँ बस वही है, तो देखते हैं क्या होता है, मतलब सीजन बहुत लंबा है, कुछ भी अभी से कहना बहुत मुश्किल है। तो देखते, जनवरी बहुत क्रूशियल है यूनाइटेड के लिए इस बार, फॉर ऑल क्लब्स इन फैक्ट। बट कमिंग बैक टू अनवेज पॉइंट की like I like to analyze everything from an FPL point of view, तो I was thinking कि अब Luke Shaw कि like he's mostly on all corners, वो भी crosses देता है अंदर, balls देता है, so maybe that link up with Ronaldo is there, कुछ potential हो सकता है उसके लिए। What do you guys think? अभी it's too early। Again, उसके परफॉर्मेंस लास्ट सीजन अच्छी थी, बट वो उतना रिलायबल नहीं है, वो इंजर हो सकता है, जैसे बैक इन का पहले हुआ था मोरिनियो के अंडर, और उसका परफॉर्मेंस डिप कर सकता है ऑब्वियसली, बट it's too early to say। and is Telles a good replacement in that role? maybe not, पता नहीं। So Telles is a very good crosser, बहुत अच्छा क्रॉसर है। इनफैक्ट लूक शॉ इज अ गुड क्रॉसर, लूक शॉ भी काफी अच्छा क्रॉसर है। टेल्स इज अ वेरी गुड क्रॉसर। पोर्टो में था जब वो, तो काफी मतलब अच्छा उसका रहता था अटैकिंग कंट्रीब्यूशन, बट अगेन वही बात है, एक राइट बैक तो चाहिए यूनाइटेड को अभी फिलहाल। Sure। I think till a certain extent Shaw also like fills that gap, and because Euros maybe if you saw his performance, वो balls जो Ronaldo चाहेगा वो Shaw till a certain extent he can satisfy him, but again United like in the upcoming January 1 they have to get a little creative. So talking about transfers, let's move on to our next segment. So in this segment we'll just go over one key transfer who we should have gotten in our teams during the summer window. Yeah, just name one player and that's it. Yeah. So Anwar, you can start. So this might sound a little too crazy, but I think in the upcoming January 1 or maybe in the summer 1, I think Liverpool should have either gone for all in for Harry Kane, or they should have gone in for someone like Jesse Lingard. The Jesse Lingard one is interesting. Yeah. What about you, Krishna? Who do you think? One player, just one. I mean, Drogba ने बोल ही दिया भाई, या तो I'd go for Ruben Neves, but Kamavinga comes second. Mr. Drog भाई यार, I think कुंडे के अलावा तो हमने बिजनेस कर ही लिया जो आइडियली हमको करना था। मतलब साउल आ गया, लुकाकू आ गया, आई डोंट थिंक कि हमको और कहीं पे कुछ करने की जरूरत थी। मेरे को बहुत बिजार लग रहा था शुरू में कि हकीमी से लिंक हुए थे जब हम बहुत शुरू में विंडो में, तो मेरे को ये लग रहा था कि मैं उस टाइम खुश इसलिए था क्योंकि मेरे को ये लगा था कि शायद रीस जेम्स को ये राइट सेंटर बैक खिलाएंगे, जैसा पिछले सीजन लास्ट कुछ गेम्स में इन्होंने खिलाया था, तो शायद सेंटर बैक के लिए नहीं जाएंगे तो विंग बैक आ रहा है। तो बात वही हुई, मतलब एक प्लेयर सेंटर लाइन में आ रहा है और एक प्लेयर वाइड जा रहा है, बट हकीमी नहीं आया, तो मेरे को चलो ठीक लगा कि रीस जेम्स की अब वो पोजीशन मतलब खतरे में नहीं है, तो ठीक है एक सेंटर बैक का जैसे मैंने शुरू में मेंशन किया आ जाता, बट मैं उससे बिल्कुल भी वो नहीं हूँ, मतलब डिससैटिस्फाइड इस ट्रांसफर विंडो में। आई थिंक चेल्सी हैव वन दिस ट्रांसफर विंडो अगर प्रीमियर लीग क्लब्स की बात करें तो। Because if you look at it as a point of view कि solving the problems, चेल्सी का सिर्फ एक ही प्रॉब्लम था, not scoring
you don't have that one person who scores goals क्योंकि Lukaku आ गया. was the top scorer with how many, like 7 goals? 7 goals he was the top scorer. So you need that guy. Otherwise कोई और club का you need that one target signing. City का वो you need that striker. United में CDM role. So then again, by far Chelsea has won it. I think Saul would have been a very good signing for Liverpool. मेरे को ऐसा लगता है, मतलब अगर लिवरपूल जाती Saul पहले भी वो साउल के साथ रूमर्स तो थे कि साउल माइट कम. रूमर तो हर प्लेयर के साथ ही होते हैं लिवरपूल के, लेकिन लेते तो कोई भी नहीं है. बट बात थी so the reason I said Lingard was so especially in the upcoming January window, जब ये टाइम स्पैन होगा ना जो अफगान का, जब माने और साला दोनों चल जाएंगे अपने इजिप्शियन इसके लिए, सॉरी अफ्रीकन नेशंस का. So in that time span, if you look at our squad depth तो है ही नहीं. If you look at our time span, कौन Origi को खिलाओगे? Even he can't. I mean, where will he play? Minamino also right now he's injured right now, and even if you play with these guys, I mean they're definitely not reliable. And I think Liverpool has that Leicester game during that time, and like last time we'll either get thrashed 4-1 or we'll somehow manage to stay alive. So I think in that, and also if you look at Lingard, he's not crucial at United at all, because even if you look at their squad depth, I mean, now that they've got Ronaldo, Sancho, all these guys, Lingard's not crucial. And even though Ole keeps saying that, you know, he's in my plans and all of that, I can't see Lingard playing with all these big names. I mean, not even forget the big names. वो fit ही नहीं करेगा. I mean, for Liverpool, the reason I'm saying all this is because obviously we need a player like Lingard who is creative and who can dribble with the ball. And अगर आप लोगों ने जो last game था England Andorra का, when he scored 2 goals and got an assist as well, he has that quick Lingard thinking. too. And yeah, I mean, all of that was there. I mean, you can see it in him. He has that potential, and I think he would fit really well in this current Liverpool team. मेरे हिसाब से चेल्सी को जो एक चाहिए था, ऑब्वियसली हमें गोल स्कोरर चाहिए था, जो हमने लुकाकू बैक कर लिया, जो अच्छी डील है एंड कुड पैन आउट एज अ मास्टर क्लास. बट पता नहीं क्यों मेरे को अभी भी लगता है कि वी शुड हैव परस्यूड हालैंड मोर, क्योंकि आई नो थोड़ा क्लीशे साउंड करता है, बट क्योंकि मैंने लुकाकू को इतना खेलते हुए देखा नहीं है, सो आई एम नॉट वेरी फेयर टू जज. क्योंकि देखो मैं बताता हूँ हालैंड का नहीं आना अच्छा क्यों है चेल्सी के लिए. एक तो जो उसका एजेंट है मीनो रायला, जो वेरी टॉक्सिक, वो तो बिल्कुल ही बेवकूफ है. ठीक है ना. तो उसको 40 मिलियन चाहिए थे. अर्लिंग हालैंड्स फादर डिमांडेड 40 मिलियन मोर एज कमीशन, तो 80 मिलियन तो यही हो गया. फिर हालैंड को आपको अपना हाईएस्ट पेड प्लेयर बनाना पड़ेगा, जो अपना वेज स्ट्रक्चर बिल्कुल हिला देगा. फिर उसकी ट्रांसफर फी, तो ये जो पूरा फाइनेंशियल पैकेज बनता ना, ये 400 मिलियन के आसपास का हो जाता. और हालैंड खेलता कितना अपने लिए? 4 साल, फिर मैड्रिड या बार्सिलोना चला जाता. रीसेल वैल्यू होती उसकी. अगर वो हर सीजन 40 गोल भी मारता, मैं तो कह रहा हूँ लुकाकू से, मैं कह रहा हूँ लुकाकू कितने गोल मारेगा? X मारेगा. हालैंड X+5 ही तो मारता. अगर हम सोच रहे हैं कि हालैंड बहुत सारे गोल करता, उसका एक गोल ना 1 मिलियन से ज्यादा का पड़ता. और खुदा ना खास्ता जो चेल्सी की हिस्ट्री रही है स्ट्राइकर्स के साथ, वो भी फ्लॉप हो जाता, तो क्या ही बॉम्ब करते हम. तो ये डॉज द बुलेट है मेरे हिसाब से. ठीक है, ही इज अ वेरी गुड प्लेयर. मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि मतलब एक सुपरस्टार है. मैं भी यही चाह रहा था कि हालैंड ही है. मैं थोड़ा डिसअपॉइंट हो गया था जब हमने कहा था कि चेल्सी हैव गिवन अप ऑन अर्लिंग हालैंड, यार लुकाकू के लिए ऑल आउट जा रहे हैं. मैं आपके जैसे इमोशन था मेरा उस टाइम में. थोड़ा सा मतलब मैं भी डिसअपॉइंट हो गया था. लेकिन जब धीरे धीरे निकल के आई ना इस डील्स के पीछे की असलियत, तो मतलब 400 मिलियन का स्ट्राइकर नहीं चाहिए. ऑब्वियसली डील वर्थ इट नहीं थी, बट अगर हम जो प्रोपेगेटेड प्राइस था, इवन अगर हम उसे 115 या 120 ओवरऑल में बैक कर पाते, जितना हम लुकाकू के लिए भी देने को तैयार थे, मेरे हिसाब से तो वो बहुत नहीं मानती डॉर्टमंड. बात ये है ना, अभी आप लुकाकू को देखो तो चेल्सी डीएनए है उसके अंदर. ठीक है, मतलब ड्रॉग्बा इज हिज क्या बोलेंगे उसको, गॉडफादर टाइप वो रोल है उसका. ठीक है, और मतलब बहुत सारे प्लेयर्स को ऑलरेडी जानता है. वो ईगो इशू है नहीं उसमें. 3 एट द बैक सिस्टम में खेला है वो 2 सीजन कॉन्टे के अंदर, और गेम जो उसको बहुत ज्यादा इम्प्रूव हो चुका है बिल्कुल. मतलब वो इस सिस्टम के लिए वेल सूटेड है. मतलब जब चेल्सी लुकाकू के लिए गई तो इसको ऐसे देखा गया कि यार ये, मतलब एक होता है ना कि यार लव मैरिज थी, मैं तो उस लड़की से प्यार करता था, लेकिन मेरे घर वाले जबरदस्ती इस लड़की से शादी करा रहे, तो मुझे इसके साथ सेटल करना पड़ेगा. वो वाली फीलिंग आ रही थी कहीं ना कहीं चेल्सी फैंस को. लड़की अच्छी है, लेकिन जो मैं चाह रहा था वो नहीं. ठीक है, लेकिन अब लड़की जो आई है बहुत अच्छी है.
और जो होता है अच्छे के लिए होता है, आपका घर में आए कि आपका घर एकदम बढ़िया कर देगी। तो लुकाकू के साथ भी यही है। तो टूकल वाज लुकिंग एट लुकाकू एज अ मच मोर मैच्योर ऑप्शन देन हालैंड। मतलब हालैंड के साथ एक ईगो इशू भी आता कहीं ना कहीं। और आप मतलब एनगोलो कांटे हु इज इन शाउट फॉर बैलन डोर, आप चलो एनगोलो कांटे तो बहुत मतलब एक बहुत ही प्यारा बंदा है, जो और सीनियर प्लेयर्स हैं आप उनको क्या बोलोगे, जो एस्पिलिक्वेटा जैसा प्लेयर है, वन ऑफ आवर हाईएस्ट अर्नर्स, उसको आप क्या बोलोगे कि भाई इस बंदे ने ऐसा क्या किया है? इफेक्टिवली 1.5 सीजन ही तो खेला है। लुकाकू इज प्रीमियर लीग प्रूवन, where he has successful stints with West Brom, Everton, United के लिए भी he scored 47 goals. He gets undue slack sometimes. मतलब ठीक है कभी-कभी होता है कि यार वो easy chances miss कर देता था, but 47 goals in 72 appearances is not bad at all Premier League में। तो अगर आप ये सारी चीजें कॉन्टेक्स्ट में रख के देखो तो लुकाकू इज अ बेटर ऑप्शन। बट ठीक है, आई गेट योर इमोशन। मेरे को भी दुख हुआ था जब पता चला था कि हालैंड नहीं आ रहा। only thing I think is that maybe people wanted Haaland because from a, I mean like you were saying that बाद में शायद Madrid या बारसा चले जाए, but as an investment don't you think Haaland would have been better, like considering his age also, कि काफी like a brand but I think brand investment होती है क्योंकि रीसेल वैल्यू भी ज्यादा होती है हालैंड की। बट बात क्या है कि अगेन आप उसका अगर पूरा वो जो 4 साल का स्टिंट देखो, क्योंकि ऐसा तो है नहीं, चेल्सी की हिस्ट्री बहुत कंसिस्टेंट रही है मैनेजर्स के साथ। मतलब ठीक है अभी बहुत सब कुछ रोजी या ऑल सनशाइन एंड रेनबोज है अभी चेल्सी में, बट यू नेवर नो व्हेन द टर्मोइल बिगिंस और कब जो चीजें वो खराब हो जाए। तो लुकाकू इज टूकल साइनिंग एंड दैट मतलब वो ही है जो सबसे ज्यादा मैटर करता है इस समय। तो अगर हमको टूकल को माई बाप मान के आगे अपना बढ़ाना है ये सीजन, तो आई थिंक लुकाकू इज अ बेटर ऑप्शन लॉन्ग टर्म में भी। मतलब ठीक है रीसेल वैल्यू कुछ नहीं होगी उसका, वन इज कॉन्ट्रैक्ट रन आउट इन 2026, हालैंड उसमें बेटर होता। बट अगेन 2 सीजन खेल के हालैंड अगर फिर से कोई क्लब आ जाता तो मतलब वही कर्टवा वाली सिचुएशन नहीं चाहिए मुझे वापस कि फिर हम पैनिक बाय करके 80 मिलियन का स्ट्राइकर लें और कुछ नहीं। मतलब उस टाइम कैपा के साथ जो हुआ इन दैट केस, तो मतलब रिस्क था, बहुत बड़ा रिस्क था। I think we can just wrap up. Last thing before, as a Chelsea thing, do you think जो rumors आए थे बीच में क्योंकि Madrid wanted to ditch Eden Hazard and there were very faint links between him and Chelsea. आपको लगता है क्या वो वापस आकर परफॉर्म कर पाता? बिल्कुल कर पाता। Did we want him? Yes. Did we need him? No. मतलब ठीक है, हजार्ड को कौन चेल्सी फैन नहीं आना चाहेगा। मतलब जैसे अभी स्ट्राइकर भी कोई प्रेसिंग नीड नहीं थी ना यूनाइटेड की थी, मतलब स्ट्राइकर से ज्यादा तो डिफेंसिव मिडफील्डर राइट बैक जो हमने डिस्कस किया। बट रोनाल्डो यदि आएगा तो कौन मना करेगा। तो सेम इमोशन हजार्ड के साथ है, बट हजार्ड की जरूरत नहीं है। बट हजार्ड का हाँ ये है कि भाई वो आएगा, घर आएगा, 7 साल जिस क्लब में खेला है, जिस क्लब में वो सुपरस्टार बना है। तो एक आई थिंक फुटबॉल में जब किसी भी प्लेयर की फॉर्म आउट होती है तो इट इज 90% मेंटल, 10% इट इज डाउन टू स्किल या फिटनेस। हजार्ड के साथ थोड़ा फिटनेस का भी इशू रहा है। मतलब वो फिट नहीं रह पाया बहुत ज्यादा। वो क्या हुआ है मेरे को वहां जाके मैड्रिड में मेरे को तो बिल्कुल समझ नहीं आता। मतलब चेल्सी में तो आई हैव नेवर सीन हिम अनफिट दिस मच। क्योंकि आई थिंक चेल्सी में वो भी था ना, बिकॉज इफ यू लुक एट आई थिंक किसी ना किसी मैनेजर ने उसके बारे में बताया था कि इन ट्रेनिंग ही वाज वन ऑफ द वर्स्ट प्लेयर्स टू सी, बिकॉज वो आई थिंक ही मेड अ कमेंट दैट ही जस्ट सिट अराउंड, ही डिडंट वांट टू गेट इंजर्ड, ही डिडंट वांट टू वर्क, बट विद द बॉल ही वाज ऑब्वियसली अ लेजेंड। सो वही है, जरूरत नहीं थी यार, अपने पास इतना अटैकिंग टैलेंट ऑलरेडी है। मतलब आप लॉन्ग टर्म में देखो, पुलिसिक है और वर्नर है और मतलब अब लुकाकू आ गया, तो इन प्लेयर्स को डेवलप मतलब होने देना चाहिए। मतलब ठीक है हजार्ड, अब मान लो इफ वर्नर डिसाइड्स टू मूव ऑन नेक्स्ट सीजन और पुलिसिक का भी फ्यूचर नहीं रहता क्लब में और इंजरी प्रोन भी है पुलिसिक, फिर अगर उस गैप को फिल करने के लिए जीएच का भी जैसे दिखता नहीं है लॉन्ग टर्म फ्यूचर क्लब पे, तो उस गैप को फिल करने के लिए अगर हजार्ड बहुत अच्छा था जीएच का। हाँ प्री सीजन बहुत अच्छा था, बहुत बढ़िया खेला था। हाँ बट अगेन स्टार्ट्स कितने मिलेंगे पता नहीं ना। टफ टू फाइंड अ स्टार्ट। स्ट्रॉन्गेस्ट चेल्सी 11 में जीएच वोंट फीचर, मेरा ये मानना है। तो वही है, देखते हैं। पुलिसिक का भी डाउट लग रहा है अभी तो। मतलब पुलिसिक कैसे रुकेगा, हडसन ओडोई भी है, बहुत ज्यादा डेप्थ है अटैक में, तो देखना होगा कैसे मैनेज होती है सिचुएशन। एंड बिफोर दिस यू और टैमी अब्राहम भी थे, मतलब यू गाइस वर स्टैक्ड। जिरू गया, टैमी गया इस विंडो में, और मतलब ठीक है अभी अच्छा तो है सही है। पर क्योंकि टैमी वाजंट गेटिंग स्टार्ट्स, उसका बेसिकली फ्यूचर खराब हो रहा था। रोमा में ही इज डूइंग वेल
अंडर Yeah, Mourinho. हाँ, इज वेरी डूइंग वेरी वेल, बहुत अच्छा खेला अभी 3 मैचेस में, तो देखते हैं क्या होता है। वही होगा, अभी अच्छा बन जाएगा फिर उसको भी 80 मिलियन में खरीद लेंगे 2 साल बाद 2-3 साल टोमोरी भी खरीदेंगे अपन, देखना अभी 3-4 साल So, just coming to an end to this, if like unbiased opinion, who would you rate as a club, like for the best signings in like not Premier League in general, as one club who you think who really stood out with the signings, tactically and like in game? आई थिंक लाइप्जिग ने बहुत अच्छा बिजनेस किया है, जिस तरीके के वो प्लेयर्स लूज करे उन्होंने। फिर स्पर्स ने बहुत अच्छा बिजनेस किया है। But मतलब Spurs की जब बात करते हैं, मैं बस एक चीज, this is something that I personally feel that Daniel Levy जो थोड़ा सा दिमाग में ढीला है। I mean, if you're getting offered 150 million for Harry Kane, then why wouldn't you want to sell him? Because even like let's say अगर ये सीजन के बाद अगले सीजन में समर ट्रांसफर विंडो में वापस सिटी और पीएसजी की या किसी और की बिड आती है हैरी केन के लिए, and his form is dropped, तो obviously उसका प्राइस भी ड्रॉप हो जाएगा simultaneously, so that will obviously affect Levy. डेनियल लीवी कभी भी अपने मोस्ट प्राइज्ड एसेट को अपने डायरेक्ट प्रीमियर लीग राइवल को नहीं बेचेगा, एंड वी चेल्सी फैंस नो दिस देन एनी बेटर। मतलब 2011-12 वाली जो विंडो थी जब एबी मैनेजर था चेल्सी का, मेरे को पता नहीं आप लोग उस टाइम फॉलो करते थे या नहीं करते थे, तो मॉड्रिच वाज हेवीली लिंक्ड विद चेल्सी। मतलब उसी मॉड्रिच ने ये बोला था कि यॉट पे आ गए थे 4 लोग सनग्लासेस और वो टक्सीडो पहन के कि चलो पापा ने बुलाया। पापा से मीटिंग भी हो गई थी, मॉड्रिच से टर्म्स भी एग्री हो गई थी, लेकिन डेनियल लीवी ने जाने नहीं दिया। नेक्स्ट सीजन 10 मिलियन का लॉस लेके उसने मैड्रिड को दे दिया। वाओ। क्योंकि उसको चेल्सी नहीं देना था। तो डेनियल लीवी की ये हिस्ट्री रही है। उसको पिस ऑफ करने के लिए फिर विलियन चुराया हमने उनसे बिल्कुल नेक्स्ट विंडो तो ये एक रही है डेनियल लीवी स्पर्स की पूरी तो जो वो नहीं देता है, प्लस स्पर्स की जो पूरी कम्युनिटी है वो अभी 2 प्लेयर्स को ही तो है, जैसे यूनाइटेड रोनाल्डो के लिए एक्साइटेड है और सिटी ऑयल मनी के लिए एक्साइटेड है। तो वही स्पर्स के लिए, स्पर्स के फैंस के पास क्या है, बस सॉन और हैरी केन ही है जो उनके क्लब को अभी इफेक्टिवली चला रहे हैं। उसके अलावा अटैकिंग थ्रेट कौन लाता है? देखो क्या है कि एक स्पर्स का बहुत अच्छा ये पैच आया था, जो पॉच एरा था उनका बहुत अच्छा था। बहुत अनफॉर्चुनेट थे वो उसमें कि ट्रॉफी नहीं जीते 2 बार। I think sacking Pochettino was also a little too harsh, don't you think? अगर वो फाइनल तक लेके गया है, नहीं एक्चुअली क्या होता है ना, आप एक हर मैनेजर के अंडर एक नेचुरल एंड टू द साइकिल आ ही जाता है। बिकॉज अगर सेम ट्रेनिंग रूटीन्स होते हैं, सेम टैक्टिक्स होती हैं, तो प्लेयर्स का जो मेंटल एग्जॉस्शन होता है हो जाता है वो 3-4 साल बाद। और उस भी सबसे जरूरी चीज ये है कि आपको जीते नहीं हो उसमें। सेम चीज क्लॉप के साथ डॉर्टमंड में हुई थी, वो नेचुरल एंड आ गया था साइकिल का। मतलब वो तो जीते भी थे डॉर्टमंड में, वो टाइटल्स भी जीते थे, चैंपियंस लीग के फाइनल में गए थे। लिवरपूल में ये चीज इसलिए नहीं हुई अभी तक क्योंकि प्रीमियर लीग जीत गए हैं, चैंपियंस लीग जीत गए हैं, और मतलब दे आर देयर पिछले 3-4 सीजन से टू फाइट फॉर द प्रीमियर लीग। तो वो एक कंपटीशन रहता है। स्पर्स के साथ यही प्रॉब्लम हुई कि मतलब क्या होता है ना, जब हैरी केन भी डगमगाने लग गया, क्रिस्टियन एरिक्सन भी हो गया कि नहीं यार मेरे को कहीं और जाना है, मेरे को कुछ जीतना है, मेरा प्राइम खत्म हो रहा है। क्रिस्टियन एरिक्सन वाज द मेन प्लेयर मिडफील्ड में उस टाइम पे, ठीक है। फिर डेली एली भी फेड अवे हो गया धीरे धीरे, क्योंकि फिर वो एक मोटिवेशन नहीं रहेगी ना अगर आप कुछ जीतोगे नहीं तो। फिर फ्रॉम गोइंग टू अ चैंपियंस लीग फाइनल टू बीइंग देयर इन द प्रीमियर लीग टाइटल रेस टू फाइटिंग आउट फॉर अ टॉप 4, फिर बिजनेस भी इतना कुछ बहुत अच्छा करती नहीं थी स्पर्स। उनका आप कोर देखोगे, स्पाइन जो देखोगे वो सेम ही थी। मतलब ऐसा नहीं था कि वो स्पाइन सेम है और आसपास आके जो प्लेयर्स हैं वो रिजुविनेट कर रहे हैं टीम को, जैसे चेल्सी में हमेशा होता था। चाहे मैनेजर्स चेंज हो जाते थे पर वो स्पाइन सेम रहती थी, ड्रॉगबा, टेरी, लैम्पार्ड, चेक, तो ये सब जो 4 प्लेयर थे ये स्पाइन होती थी, इनके अराउंड प्लेयर्स आते रहते थे, जाते रहते। तो वो चीज भी नहीं थी स्पर्स में। तो ये सारी चीजें हुई हैं। तो मतलब हार्श हम बोल सकते हैं इन टर्म्स ऑफ व्हाट पॉच हैज डन फॉर स्पर्स, बट उस टाइम इट वाज द राइट डिसीजन। और मरीनियो को सैक करना वाज हार्श इन माय ओपिनियन। हाँ, मूरिन्यो के लिए स्पेशली, मूरिन्यो बीइंग लाइक अ प्रॉपर प्रैग्मेटिस्टिक मैनेजर जो डिफेंसिवली खेलता है बहुत। इन स्पर्स के डिफेंस में कौन है? एंड दैट टू सैकिंग हिम जस्ट अ वीक बिफोर दिस एग्जैक्टली वो दैट टू अगेंस्ट मैनचेस्टर सिटी एट द प्राइम, और वो भी ऐसे ही किसी को लेके आ गए। I was so angry भाई। वो उसने खुद बोला कि भाई that is one जो भी how many ever cup wins plus half, क्योंकि उसे पता था कि वो जीत जाएगा यार, and he would have
मतलब वो तो देखो, मतलब अपन कह नहीं सकते अभी, बट ये मेरे को अगर सैक ही करना था तो कब, अगर हार जाते तो उसके बाद सैक कर दे। एनीवे तुम हार ही गए फाइनल मैन सिटी से, तो उसको मरीनियो को हारने देते ना, तो एटलीस्ट तुम्हारे पास एक सॉलिड रीजन तो होता कि भाई तुम लीग में भी खराब कर रहे हो। उसने ट्रेनिंग ग्राउंड पे नहीं आने दिया तो फिर सैक कर दिया, मतलब काफी स्टूपिड रीजन लगा था मुझे। But there was some talk also कि he opposed the Super League maybe, इसलिए he outraged सुपर लीग पर, प्लस वो फिर वो जाग्रेब से भी हार गए थे उसमें यूरोपा लीग में, डिनामो जाग्रेब से, तो वो भी जो चीज थी वो बहुत मतलब एंटी चली गई मरीनियो के, बट काफी बिजार था। और आई थिंक दिसंबर तक तो टॉप पे थी स्पर्स, दिसंबर या नवंबर एंड में। तो वो वही है, फिर वही 5-6 मैचेस का रन आया और सैक कर दिया। बट यू आर नॉट चेल्सी यार, यू आर स्पर्स, अपनी औकात में रहो, थोड़ा टाइम दो मैनेजर को। तो वो मुझे चीज समझ नहीं है। चलो देखते हैं क्या होता है। I think that is it for this episode, guys. We had a lot of fun talking with the Baba of YouTube, Mr. Dog Baba himself, and I think we all enjoyed. Let's hope you guys enjoyed as well. If you do, drop a like and subscribe. So signing off, guys. Signing off. Take care, guys. Take care. Signing off. Bye bye.